Good morning and Jai Hind, children. Welcome in today's science class. Children, it's 10 o'clock and it's time to study the science subject. It's your science period. Children, yesterday we have started the new lesson, the lesson number 12, the earth and its neighborhood. And we have learned about the solar system. What is solar system, beta? What is solar system? The sun and the 8 planets that move around the sun make solar system. Today we will read in the detail about the planets and about earth also and the movement of earth. Let's read one by one these topics and we will do the activity, that is the formation of day and night. We will do that and we will learn and understand how day and nights are formed. Okay children, let's start the topic one by one. You all are ready? Yes, it is in your book. It is in page number 106 to 108, 109. Okay, no need to open the book because I am going to share the PDF of the book, your book pages, so you can see and learn from there also. Huh? You can see this picture. This is the sun. Sun is also a star, but it we can see it clearly. हमको ये अर्थ पे से ज्यादा क्लियर दिखता है. Why? क्योंकि अर्थ के बहुत पास है. You can see this is the earth and sun is a big ball of hot gases. After sun there is Mercury, Venus, Earth, huh? Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These 8 planets, and they move around the sun in a fixed path. And this fixed path is called orbit. What is these, beta? These are orbits. जो white color की lines दिख रही हैं आपको, वो क्या है? These are orbits. Okay? This is the orbit of Mercury. This is the orbit of Venus. This is the orbit of Earth. That's why कोई भी सबका अपना एक प्लेस होता है और वो एक दूसरे से टकराते नहीं है. चिल्ड्रन, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन देयर फिक्स पाथ. आपने अभी दिखाया मैंने प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं. द सन इन देयर they move around the sun in their fixed path. And what are planets? Planets are heavenly bodies that moves around the sun. हमने देखा ये सब planets है. Planets क्या है? They are the heavenly bodies that move around the sun in a fixed path. The fixed path of the planet is known as orbit. जो white color की सो lines दिखी थी, they were the orbit. And children, you know, the size of the planet is much smaller than the size of a star. स्टार का साइज बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू प्लैनेट, बट वो हमसे बहुत दूर है. दे आर वेरी फार. दैट्स व्हाई वी कैन सी अ वेरी स्मॉल. दे आर वी can see that the stars are very small. But the reality is the size of the planet is much smaller than that of a star. A planet does not give out heat or lights of its own. ये अपनी lights और हीट नहीं देते. बट स्टार सन दे गिव देयर ओन लाइट ना. बट प्लैनेट्स के बाद दे डज नॉट गिव आउट हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन. तो ये शाइन कैसे कहते हैं करते हैं? इट शाइन्स ये बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द सन. जो सन की लाइट है, जो सन की यहाँ जो लाइट पड़ रही है जब इस प्लैनेट पे पड़ती है, तो इसके रिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या करता है? शाइन करता है. इसकी अपनी लाइट नहीं है, किसी भी प्लैनेट की अपनी ओन लाइट नहीं है. ओके, जब ये सन की रेज इस पे पड़ती है और ये रिफ्लेक्ट होकर इस पे आती है, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिस लुक्स इट हैज लाइट. एंड यू ऑल नो अर्थ इज अ प्लैनेट. अर्थ इज planet, and beside the earth there are 7 other planets which move around the sun, which we have seen in this picture. The order of the 8 planets starting from the one closest to the sun is Mercury. सबसे पहले sun के पास क्या था? Mercury. Then Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter, then Saturn, then Uranus, and then Neptune. सबसे पास क्या था? Mercury. सबसे दूर क्या है? Neptune. और अर्थ कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे है. हाँ, चिल्ड्रन, डू यू नो the first 4 planets are
called inner planets. The first four planets are called inner planet. They are Mercury, Venus, Earth and Mars. Mercury, Venus, Earth and Mars, जो पहले के चार planet होते हैं उनको inner planets कहते हैं. और what is the specialty of inner planets? They have solid surfaces. बेटा जो इनके surface होते हैं ना, ये देखो जो चार planet है मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, ये क्या होते हैं, इनके जो सरफेस होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है. एंड दीज फोर प्लैनेट जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न, दे आर कॉल्ड, ये आउटर प्लैनेट कहलाते हैं. ये चारों क्या कहलाते हैं? आउटर प्लैनेट्स. व्हाई दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स? बिकॉज these planets are mostly made up of gases. ये चारों प्लैनेट किसके बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ठीक है. दे डोंट हैव सॉलिड सरफेस, इनकी कोई सतह सरफेस नहीं होती है, बट दे हैव सॉलिड सरफेसेस, ठीक है. तो इनर प्लैनेट्स कौन से हुए? मरकरी, वेनस, मार्स एंड अर्थ. और आउटर प्लैनेट्स कौन से हुए? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. And what is the another difference between inner planets and outer planets? एक तो ये inner area में है, plus ये किसके बने हुए हैं? They have solid surfaces. And इनका क्या है? They are made of gases. वो किसके बने हुए हैं? They are made of gases. ठीक है. They have the last four planets are called outer planets, and these planets are mainly made up of gases. Children, let's read. And another thing, what you see in the sky? Moons. Moons are the heavenly object that move around the planet. मून किसके चारों ओर घूमता है? सन के नहीं, मून प्लैनेट्स के चारों ओर घूमता है. Where does moon moves? Moon moves around the planets. Our earth has only one moon. हमारे अर्थ के चारों ओर भी एक मून घूमता है, जो कि नंबर में 1 होता है, सिर्फ एक होता है. इट इज मोर देन 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अर्थ. और इसका साइज क्या होता है? 1/4 से, 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा होता है. एंड लाइक द अर्थ, सम अदर प्लैनेट्स आल्सो हैव देयर मून. अभी हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था ना कि और भी जो प्लैनेट्स होते हैं उनके भी मून होते हैं. हाँ, जैसे मार्स है, रेड प्लैनेट्स मार्स है, इसके 2 मून्स होते हैं. और सबसे ज्यादा मून किसके होते हैं चिल्ड्रन? जुपिटर के. जुपिटर के तो 67 मून होते हैं. एंड और सैटर्न के भी मून होते हैं. सैटर्न हैव 62 मून्स. और यूरेनस के कितने मून्स होते हैं? यूरेनस हैव 27 मून्स. यूरेनस के कितने मून्स हुए? 27 मून्स. और नेपच्यून के कितने मून्स हुए? 14 मून्स. इस तरीके से आप देख रहे हो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों जो आउटर प्लैनेट्स हैं, इनके नंबर ऑफ मून्स बहुत ज्यादा है. बट द अर्थ हैज ओनली 1 मून. और इसके साइज मून का क्या होता है? 1/4 साइज ऑफ द अर्थ, 1/4 साइज का होता है. चिल्ड्रन, लेट्स डू दिस बुक एक्सरसाइज. चलो अब हम लोग ये वाली बुक एक्सरसाइज करने हैं. व्हाट वी हैव टू डू हियर? वी हैव टू डू ट्रू और फॉल्स. हमको यहाँ पे क्या बताना है बेटा? कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. लेट्स रीड द स्टेटमेंट. सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. ओके. The size of the planet is much bigger that of a star. अभी मैंने क्या पढ़ाया था? The size of the planet is much smaller. अभी हमने smaller आपको पढ़ाया था ना बेटा? ये बिगर नहीं होते, ये क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं. ओके. साइज ऑफ द स्टार, ये मून क्या होता है? स्मॉलर इन साइज होते हैं ये. एंड चिल्ड्रन, वी विल रीड मेनी other exercises also. Let's read, beta. Just wait for a minute. Okay. Let me see. Actually, that we were searching. Wait for a minute. I'm showing you that. Yes, these are the book pages.
These are the book pages which we are reading. हम लोगों ने इसको देखा था. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? What we have learned in this PDF? ये about solar system and the planets move around the sun in their fixed path. हाँ, उसको ऑर्बिट कहते हैं. Earth has 7 planets and we have learned about the outer and inner planets and we have learned about the moon. कि अर्थ का केवल 1 मून है, but the others they have some of them have. हमने आउटर प्लैनेट्स का बताया था, जैसे जुपिटर का 67 है, सैटर्न के 62 मून्स हैं, माय गॉड इतने सारे, एंड यूरेनस के 27 एंड नेपच्यून के 14 मून्स है. दिस इज इन योर बुक. आपके बुक में ये सब कुछ देखो लिखा हुआ है एट द पेज नंबर 106. हाँ, एंड दिस इज द बुक एक्सरसाइज. यू विल डू इट. मैं बताऊंगी, आप पेंसिल लेके मेरे साथ करते चलो. The size of the planet is much bigger that of a star. This statement is false. ये statement क्या है बेटा? This statement is false. The size of the planet is smaller than that of a stars. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? False लिखोगे. What you will write here? False. Number 1 में सब लिखो false. Come to the second one. There are 9 planets in our solar system. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ये भी फॉल्स है ना. हमारे प्लैनेट्स में, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स. द आउटर प्लैनेट्स आर मेनली मेड अप ऑफ गैसेस. यस, दिस इज ट्रू. This is true. And Venus is the brightest planet. Yes, this is also true. And the Saturn is the largest planet. This is false. Saturn क्या सबसे largest planet है? नहीं, this is false. Then number 1, the size of the planet is smaller. This is false. Number 1 is false. Number 2 is false. And number 5 is false. And 3 and 4 are true. Children, you can do yourself. Na? Just I am telling you, you have understood all the things and do yourself. Okay? Now we will read about the planet that is the most important planet on which we live. That is Earth. Na? And that is known as living planet. Why it is known as living planet? What is the Earth is also known as living planet. Why? The Earth is the only planet known as life on it. केवल अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है. It is surrounded by a layers of air called atmosphere. इस अर्थ के चारों ओर बेटा एक layers of air है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. इस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है? द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन. तो अर्थ के चारों ओर जो यहाँ कौन सी गैस है इसके चारों ओर है? ऑक्सीजन. एंड इट कंटेन्स अदर गैसेस. और भी कुछ गैसेस होती हैं. दे आर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी अर्थ के चारों ओर होता है. एंड चिल्ड्रन, यू नो अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. जो अर्थ का ये जो देख रहे हो ब्लू वाला हिस्सा, ये जो डार्क ब्लू पर्पल कलर का, दे ऑल आर वाटर. तो 70, ये देख रहे हो मोर देन 75% ये सारा क्या है? वाटर है. जो ब्लू वाला पोर्शन क्या है? दिस इज वाटर. और जो ये ग्रीन और येलो ये पोर्शन आ रहा है, दिस इज लैंड. एंड जो ये ब्लू वाला पोर्शन क्या है? ये सब वाटर है. ठीक है. वाटर एंड लैंड आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. और ये वाटर और लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? केवल इस आउटर मोस्ट लेयर में. अर्थ के बहुत सारे लेयर्स हैं, अभी मैं बताऊंगी. तो आउटर मोस्ट लेयर में देयर इज ओनली वाटर एंड लैंड. दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रस्ट. इस पार्ट को क्या कहते हैं? क्रस्ट. ये देखो अर्थ के 3 पार्ट दिखाए हैं. जो ये आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जिसपे हम रहते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट पे ही लैंड है, वाटर है. और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट. और इस क्रस्ट के अंदर एक दूसरी लेयर है, देख रहे हो? मॉल्टेन लावा है जहां पे गर्म, उसको मैंटल बोलते हैं. दे आर कॉल्ड मैंटल. हाँ, दिस इज द अनदर सेकेंड लेयर. एंड इट इज द लेयर वी अर्थ क्रस्ट. कौन सा लेयर है? जिसपे कि हम रहते हैं. Below the crust there is a layer of molten rocks. उसमें molten मतलब melted. What is the meaning of molten? Melted. Melted rocks का एक layer है जिसको कि हम mantle बोलते हैं. And the innermost layer is called core.
It is made up of molten metals and it is the hottest layer of the earth. ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिस इज द क्रस्ट हो गया, दिस इज द अर्थ क्रस्ट वेयर वी लिव, जहां पे लैंड और वाटर है. उसके बाद क्या है, मॉल्टेन रॉक है, हॉट रॉक्स की एक लेयर है, उसको हम मेंटले बोले. ठीक है, आफ्टर दैट सबसे इनर में यहाँ पे मॉल्टेन मेटल्स होते हैं. ये क्या है, मॉल्टेन मेटल्स एंड दे आर वेरी हॉट. और इस एरिया को क्या कहते हैं, कोर. इस एरिया को दिस इज कोर, दिस इज मैंटले एंड दिस इज क्रस्ट. These are the layers of the earth. And the innermost layer क्या कहे, core. It is made up of hot molten metal and it is the hottest layer of the earth. देख लिया हमने, ये सबसे hottest layer ये होता है. Come to the next. Now we will read about the movement of earth. Children, you know, हमारी अर्थ हमेशा मूव करती रहती है. अर्थ क्या करती रहती है, इट मूव्स. हम उसको फील नहीं कर पाते हैं बट इट मूव्स. एक तो ये these the earth shows two types of movement. दो वो तरीके से मूवमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. अब एक एक मूवमेंट को मैं हम लोग लाइन से डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स द अंडरस्टैंड अबाउट द रोटेशन. चिल्ड्रन, pierce a knitting needle through the center of the orange. आप एक ऑरेंज के अंदर से एक निडल को घुमाओगे and keep the needle still and turn the orange about the needle. और उस निडल के चारों ओर जब ऑरेंज को घुमाओगे तो आप क्या देखोगे, just as the orange turn about the needle, the earth also turn about an imaginary line. That's और एक इमेजिनरी लाइन के चारों ओर अर्थ अपने ही चारों ओर घूम रही है एक इमेजिनरी लाइन के. एंड जो ये लाइन होती है उसको क्या हम कह रहे हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ. एंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड एंड दिस स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये देखो अर्थ अपनी ही एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन ये जो जा रही है इसको हम एक्सिस कहते हैं. इस इमेजिनरी लाइन के ही चारों ओर अर्थ घूमती रहती है. ठीक है, इस तो जो ये इमेजिनरी लाइन के चारों ओर ये अर्थ घूमती, इधर से घूमते घूमते इधर को आती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. आपने एक लट्टू नाचता हुआ देखा है, जो बैंगल ना, एक हम लोगों ने इस और भी देखा था कि जब हम किसी चीज को सर्कल घुमाते हैं तो कुछ हिस्सा सामने आता है, कुछ हिस्सा बैक में चला जाता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट होता है. वो भी मैं करके आपको बताऊंगी. ओके चिल्ड्रन, दिस इज द पिक्चर ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. और ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन असली में नहीं होती है, हम इसको इमेजिन करते हैं. एंड दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज, क्या कहलाती है, एक्सिस. और जहां पे ये इमेजिनरी लाइन को महसूस करते हैं, वी सी दैट इज कॉल्ड, अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और नीचे इधर क्या होगा, साउथ पोल. दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल और दिस इज कॉल्ड साउथ पोल. और एक लाइन जो कि अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, ये देखो, ये दिस इज कॉल्ड इक्वेटर. ये कौन सी लाइन है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर. इक्वेटर अर्थ को किस दो हिस्सों में बांट रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हिस्सा ऊपर के नॉर्थ पोल में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाया, और जो नीचे की ओर साउथ पोल के चारों ओर है ये सदर्न हेमिस्फीयर. दिस एरिया इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, और जो ये अर्थ का रोटेशन है इसको करने में कितना टाइम लगता है, टू कंप्लीट वन रोटेशन इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे पूरा लग जाता है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और यही अर्थ का जो घूमना क्या कहलाता है, करता है, कॉजेज मतलब करता है, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन करता है. द 2 पॉइंट्स वेयर द एक्सिस सीम्स टू एंटर द अर्थ इज कॉल्ड द पोल्स. The northern point is called North Pole and the southern point is called South Pole. जैसे कि हमने पिक्चर में दिखाया, कौन सा, the 2 points where the axis seems to enters. ये देखो, ये जो 2 points है, ये 2 points है जहां पे axis seems to enter, लगता है तुमको कि एक्सिस एंटर अंदर की ओर कर रहा है. ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, दो पोल्स कहलाते हैं. एक नॉर्थ पोल कहलाता है और एक साउथ पोल कहलाता है. ये कहला रहा है ना, जो नॉर्थ में है वो यहाँ से एक्सिस एंटर करता हुआ सीम हो रहा है, यस. हाँ, साउथ पोल. देयर आर अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ व्हिच इज एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द पोल्स. बिल्कुल आधे रास्ते में है, इट इज कॉल्ड इक्वेटर. अर्थ के एग्जैक्टली हाफ पे है. ये देखो,
इतनी बड़ी अर्थ है तो इसके लगभग एग्जैक्टली हाफ पे जो ये लाइन है और जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड कर रही है, दैट इज इक्वेटर। उसको हमने क्या कहा? इक्वेटर कहा। इट इज कॉल्ड इक्वेटर। इट्स डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। द नॉर्दर्न हाफ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। देखा, नॉर्दर्न एरिया क्या कहलाया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और साउथ वाला एरिया क्या कहलाया? सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, formation of day and night as the earth rotates on its axis at a given time, क्या होता है? एक बार में क्या होता है? हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन। केवल आधा हिस्सा ही धरती का सन को फेस कर पाता है। जो अर्थ का दूसरा हिस्सा है वहां सन नहीं पहुंच पाता है। तो जो वाला एरिया दैट गेट्स द सन लाइट्स, जिस धरती के एरिया में सन पहुंचता है वहां पर क्या होता है? डे होता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो अर्थ इतना बड़ा है और ये सन है इधर, और सन की लाइट आ रही है। तो जिस हाफ एरिया में सन की लाइट पहुंच रही है आगे वाले पोर्शन में, वहां तो डे है। लेकिन अर्थ का जो पीछे वाला एरिया जिसमें लाइट नहीं पहुंच रही है, दैट इज नाइट। वहां क्या है? नाइट है। अभी अर्थ मूव करता है ना, ये जब ऐसे घूमेगा तो ये वाला हिस्सा आगे चला जाएगा, ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा। देन अगेन क्या होगा? इस वाले एरिया में नाइट डे हो जाएगा और इस वाले एरिया में नाइट हो जाएगा। और पूरा ये मूव, पूरा अर्थ एक चक्कर अपने चारों ओर घूमने में कितना लगाता है? 24 आवर्स। ये पिक्चर आपको क्या दिखा रहा है? फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो जहां पे सन की रेज धरती के आधे एरिया में पड़ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? व्हाट वी से कि डे टाइम यहाँ पे हो रहा है। और ये पूरा पोर्शन का वर्क होने में कितना लगता है? 24 आवर्स। चिल्ड्रन, लेट्स डू एन एक्टिविटी। क्या करेंगे? जिससे हम डे और नाइट का फॉर्मेशन देखेंगे। प्लेस अ ग्लोब इन फ्रंट ऑफ अ टेबल लैम्प। एक ग्लोब जो कि धरती का मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, ऐसे गोल सी चीज कोई भी हम सामने रखेंगे, एंड मार्क अ रेड पॉइंट ऑन अ पार्ट ऑफ द ग्लोब फेसिंग द लैम्प। लैम्प को हम एक सन के जैसा इमेजिन करते हैं, और जो एरिया यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देंगे रेड कलर से। हाँ, मार्क अ ब्लैक पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द, और एक दूसरा पॉइंट हम कहाँ पे बना देंगे? अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ की। और फिर आप देखोगे और आप इस रूम के लाइट को बंद कर दोगे और कोई दूसरी लाइट नहीं आने दोगे, केवल आप इसके लैंप की लाइट को आने दोगे। तो आप क्या देखते हो कि ये फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट हमको दिखाएगा। कंसीडर द लैम्प एज अ सन एंड द साइड विद द रेड पॉइंट फेसिंग द सन इज लाइटेंड हैज डे। जो एरिया में हमने रेड पॉइंट लगा रखा है और जो एरिया सन को फेस कर रहा है वो क्या था? वो डे यहाँ पे हो गया है। हाँ, देयर इज डे, और जो पीछे है वहां पे नाइट है। नाउ टर्न द ग्लोब स्लोली सच एज द रेड पॉइंट ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। अब धीरे धीरे इसको ऐसा घुमाएंगे कि रेड पॉइंट धीरे धीरे पीछे आता जाए, और आप क्या देखोगे कि जो डार्क साइड था वो अब आगे आएगा। इट मीन्स द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट हैज नाउ नाइट, वो थोड़ी देर में आप देखोगे सामने आकर के वहां पे डे हो गया। एंड द दूसरा वाला जहां पे ब्लैक पॉइंट किया था वो वहां पर आपके डे में आ गया और रेड वाला पॉइंट पीछे चला गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि डे एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ही डे एंड नाइट होते हैं। चिल्ड्रन, दिस टाइम आई एम गोइंग ट्राइंग टू शो यू, आई डोंट हैव, इस समय हमारे पास वो तो नहीं है चिल्ड्रन, ग्लोब तो नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं। आई विल कंसीडर दिस, आई हैव दिस बिग बॉल। ये देखो, इसको मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ? एक अर्थ के जैसा दिखाने का कंसीडर। अर्थ का ऐसे ही शेप होता है ना बेटा, इसको आप अर्थ के जैसा कंसीडर करोगे। और आई हैव वन लैम्प। ये देखो, ये एक लैम्प है मेरा। इस लैम्प से मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगी। ठीक है, रूम की लाइट ऑफ करके लैम्प का लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ। वेट, आई एम ट्राइंग टू शो, बिकॉज फिजिकली क्लास में दिखाना तो आपको आसान होता है, बट हियर इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे कि ये ग्लोब है। इस ग्लोब में क्या है? कुछ एरिया डे है और कुछ एरिया, अरे हम इसमें डे और नाइट का फॉर्मेशन दिखाएंगे। ये सब कंट्रीज इसमें बनी हुई हैं बहुत सारी है। आप सपोज कर रहे हो ये क्या है? ये ग्लोब है। और इस लैंप को क्या क्या सपोज कर रहे हो? ये कैसा, ये क्या देगा हमको? हम इसको सन कंसीडर करेंगे।
चिल्ड्रन आई एम ट्राइंग टू शो, आप इसको समझने की कोशिश करो, बिकॉज दिस इज नॉट इन द क्लासरूम। मैं अभी अपने इस रूम की लाइट बंद करूंगी और लैंप को ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ चिल्ड्रन। ओके, ये देखो, ये मैंने लैंप दिखाया, हाँ, ये लैंप मैंने यहाँ पे दिखाया। जो जो सपोज लैंप एज अ सन, लैंप को आप क्या कंसीडर किए थे? एज अ सन, सन के जैसा आपने उसको कंसीडर किया, ठीक है। और हाफ ऑफ द पोर्शन, आप इसको दूर से देखोगे तो तब समझ में आएगा कि ये सामने वाला पोर्शन जिसपे कि ये लैंप की लाइट पड़ रही है, ये देखो, जो लैंप की लाइट सामने वाले पोर्शन पे पड़ रही है वहां तो डे है, लेकिन जो ये पीछे वाला पोर्शन है जहां लैंप की लाइट नहीं पड़ रही है, वो वहां क्या होगा? नाइट होगा। अब तुम लोग देखो, मैं यहाँ पे एक रेड कलर का मार्क बना दे रही हूँ, ये मार्क है ना। अभी ये मार्क हमको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है बेटा? क्यों दिख पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमको सन की रोशनी पड़ रही है, लैंप को हम एज ए सन कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये अर्थ है, इसको हम अर्थ की तरह सपोज किए, अब ये धीरे धीरे मूव करेगा और जो एरिया पीछे था वो मैं आगे ले आई। अब देखो, इस वाले एरिया में डे हो गया, और जो रेड वाला एरिया जहां पे हमने मार्क लगाया था वहां नाइट हो गया। फिर ये घूमते 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 ये वापस आया सामने, अब देखो सामने आया, आ गया ना। अब अगेन यहाँ पे डे हो गया। तो इस तरीके से हमने आपको डे एंड नाइट का फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये देखो, ये मूव करते का पहले देखो एकदम यहाँ पे ढाई डे था, खूब ज्यादा रोशनी है, तो डे यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज रोशनी थी। अब धीरे धीरे ये देखो, ये अर्थ मूव करता है, ऐसे मूव कर, जो कंट्रीज यहाँ पे सामने से, सपोज ये रेड जहां मार्क लगाया वहां इंडिया है, हाँ, इंडिया में डे टाइम है। अब धीरे धीरे अर्थ मूव की तो इंडिया का ये पीछे चला गया, दूसरी कंट्रीज आगे आते गई, वहां डे हो गया। इधर अब जो पीछे वाला पोर्शन है वो आगे आ गए। फिर ऐसे ही घूमते 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 आफ्टर 24 आवर्स तक का टाइम लगा और ये इंडिया फिर सामने आ गया। तो जो कंट्री सन के सामने आ रहे हैं, लैंप को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एज अ सन, एज अ सन। तो दिस एक्टिविटी शोज कि जो धरती का जो सामना एरिया, जो कंट्रीज अर्थ के सामने होते हैं वहां देख लो जहां तेज लाइट हो रही है, इसीलिए कभी कभी धीरे धीरे फिर जब जैसे जैसे किनारे जाता है यहाँ इवनिंग होती जाती है। फिर मॉर्निंग में ऐसी सन निकलता है तो क्या हो जाता है? इन द मॉर्निंग आपका फॉर्मेशन हो जाता, अर्थ सन निकलता हुआ सा दिखाई देता है, ठीक है बेटा। मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, क्लासरूम में तो ये चीजें दिखाना है थोड़ा ज्यादा पॉसिबल होता है, बट हियर आई हैव ट्राइड टू शो यू फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। ओके चिल्ड्रन, देन व्हाट यू हैव लर्न टुडे, द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट देखा आपने, आउटर प्लैनेट्स एंड इनर प्लैनेट्स के बारे में यू हैव लर्न अबाउट द आउटर प्लैनेट्स एंड इनर प्लैनेट्स। ओके, 4 planets which are inside, they are called inner planets, जिसके solid surfaces होते हैं। they are, what are these planets? मरकरी, वेनस, मार्स, ये आपके हो रहे थे। इस तरीके से 4 planets आउटर के हैं जिनका की गैशियस फॉर्म के बने होते हैं। एंड चिल्ड्रन वी हैव लर्न दैट कि अर्थ के मूवमेंट से एक, और ये जो पूरा बेटा एक मूवमेंट किया, पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ कितना टाइम लेती है? 24 घंटा। और ये मूवमेंट देखो, ये जो मूवमेंट आ रहा है इस मूवमेंट को क्या कह रहे हैं? ये जो मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से अर्थ बराबर घूमती रहती है, दिस इज द रोटेशन। ये क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये अपनी ही एक्सिस के चारों ओर घूम रही है, ओके ना, देखो। और जो इमेजिनरी लाइन जिसके चारों ओर ये घूम रही है वो क्या कहलाए? एक्सिस कहलाया। जो लाइन ऐसे प्रतीत हो रही है, सीम हो रही है, वो लाइन है। और ये वाला एरिया क्या है? नॉर्थ पोल। और ये वाला नीचे वाला एरिया साउथ पोल। और जो 2 भाग में ऐसे डिवाइड करा, अर्थ को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ये क्या हो जाता है हमारा? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, और इस लाइन को हम इक्वेटर बोलेंगे जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके चिल्ड्रन, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय डियर।